قرآن کریم میں لکھا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. سوچو ہمارے نبی پر کیا گزرتی ہوگی جب یہ مشورہ ہوتا ہوگا. کوئی شاعر کہتا, کوئی کاہن کہتا, کوئی نجومی کہتا, کوئی مجنون کہتا, کوئی جادوگر کہتا. آپ خیر مقدم ہمارے چینل قیوار احمد علی بیان پر. دوستو آج کے قاری احمد علی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے قیامت کا خوفناک منظر, یا ربی نفسی یا ربی نفسی. اس بیان کو توجہ سے سنیں, بہت زیادہ فائدہ ہوگا. چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں. آپ کو بہت پیاری بات بتاؤں, حضرت ابراہیم بہت بڑے پیغمبر ہیں, بولو ہے نا پیغمبر, بہت اولو العزم پیغمبر ہے. لیکن معلوم ہے صحابہ کرام پوری رات روئے ہیں جب یہ پتہ چلا کہ قیامت آئے گی نا. ہاں بولو نا, قیامت آئے گی نا. آواز نہیں آ رہی, پورا مجمع بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. اللہ نے فرمایا قیامت آئے گی. یہ سورج ختم, چاند ختم, زمین آسمان ختم, پہاڑ ختم. اللہ نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت. قیامت کا عجیب دھماکہ ہوگا. لیکن حدیث میں کیا ہے معلوم, حضرت ابراہیم قیامت میں جگہ پر کھڑے ہوں گے, لمبے چوڑے, ارے بولو لمبے. اس وقت حضرت ابراہیم کو پوچھا جائے گا قیامت میں آپ کی امت کا ہے, آپ کی امت کا ہے. حضرت ابراہیم فرمائیں گے یا ربی نفسی نفسی, اللہ میرے کو میری فکر ہے, معلوم نہیں میری امت کہاں کھڑی ہے, میرے کو نہیں معلوم میری امت. اللہ کہیں گے کہاں, اللہ تیرے کو معلوم کہاں کھڑی ہے, باقی میرے کو تیرے حوالے. اللہ سب کو امت تیرے حوالے, میری جان بچا لے اللہ, قیامت کا دن ہے, میرے کو جہنم سے بچا لے اللہ, میرے کو آگ سے بچا لے اللہ, تیرے غصے سے بچا لے. معلوم حضرت ابراہیم کا یہ معاملہ, حضرت اسماعیل کا, حضرت یوسف کا, حضرت یعقوب کا, حضرت سلیمان, جتنے بڑے بڑے نبی ہوں گے سب کو پوچھا جائے گا کیا حال ہے قیامت میں. کہیں گے یا ربی نفسی نفسی, اللہ میرے کو بچا لے اللہ, میرے کو امت کہاں ہے. ہاں ہم کو نہیں معلوم امت کہاں ہے, اللہ امت تیرے حوالے. معلوم ہے حضرت عائشہ ایک رات روتے روتے میرے نبی قیامت میں نبی کہیں ہوں گے, امت کہیں ہوگی, آپ کہاں ہوں گے میرے نبی. سننا ہمارے نبی کا جواب سننا. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں سب نبی کہیں ہوں گے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا ان کی امت کہاں ہوگی. تو کہا میرے نبی آپ کا کیا معاملہ ہوگا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا عائشہ جہاں میری امت ہوگی انہی کے بیچ میں کھڑا رہوں گا, میری امت کے بیچ میں کھڑا رہوں گا, اشارہ کرتا جاؤں گا, اللہ جنت میں داخل کرتا چلا جائے گا. بولو سبحان اللہ. پھر عائشہ نے فرمایا پھر کوئی رہ گیا تو, کوئی رہ گیا تو. ہمارے نبی فرماتے میں پل صراط کے کنارے پر کھڑا رہوں گا. پل صراط جو پل بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے, جس میں سے سب کو گزرنا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ فرماتے جو بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ بھیج بنا ہوا ہے, اس پر سے سب کو گزرنا. ہمارے نبی فرماتے عائشہ فکر مت کرنا, میں وہاں کنارے پر کھڑا رہوں گا اور کہتا رہوں گا اللہ میری امت کو بجلی کی طرف پار کرا دے, اللہ میری امت کو بجلی کی طرف پار کرا دے. پھر حضرت عائشہ نے بولا پھر کیا کرو گے. ہمارے نبی نے فرمایا پھر میں ترازو کے پاس جاؤں گا, جہاں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا اللہ کے قریب جا کر کہوں گا اللہ میرا امتی آ رہے, اللہ میرے امتی آ رہے, ان کے گناہ کے پلے کو جھکانا مت, ان کے نیکی کے پلے کو جھکا کر جنت کا فیصلہ کر دینا. کہتے اس کے بعد میں جنت کے قریب جا کر کہوں گا اللہ میری امت کو آنے دے, اللہ میری امت کو آنے دے, اللہ میری امت کو آنے دے. ہمارے نبی فرماتے میرے اللہ کی قسم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک امت کا جنت کا فیصلہ مکمل نہیں ہو جائے گا. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی نبی, اور ان کا چہرہ نہیں اچھا لگتا ہم کو, ان کے کپڑے نہیں اچھے لگتے, ان کی فجر کی نماز نہیں اچھی لگتی. یہاں کتنے بیٹھے جو آج فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے, تھوڑی دیر کے لیے سوچو آپ فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے, مدینے میں ہمارے نبی کے دل مبارک پر کیا گزری ہوگی. میرا امتی میرے صدقے میں کھاتا ہے, میرے صدقے میں پیتا ہے, میرے صدقے میں گھر میں رہتا ہے, میرے صدقے میں اللہ نے اس کو بیوی بچے دیے, میرے صدقے محمد کے صدقے اللہ نے کھلایا, محمد کے صدقے پلایا, محمد کے صدقے اللہ نے ہم کو زندگی دی. اور وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز نہیں پڑھ کے ان کی آنکھوں کو گرم کرنا. اے میرے دوستو ہمارے سے بڑا جھوٹا اور دھوکے باز کوئی نہیں ہوگا. میں سچ بتاؤں, میں آخری بات بتا دوں, ہمارے نبی کی شان ہے کہ نہیں ہے. معلوم ہے آپ کو مکے میں میٹنگ ہو رہی ہے, پورا مجمع بولے گا مکے میں کیا ہو رہی ہے, اور میٹنگ میں کیا ہو رہا ہے معلوم ہے, یہ محمد کو سب بولیں گے صلی اللہ, میں نے بلند آواز سے صلی اللہ. یہ تو میٹنگ کی بات کر رہا ہوں, میٹنگ میں ہو رہا ہے کہ محمد کو کیا کیا جائے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے, مکے سے کیسے نکالا جائے, مکے سے نکالا کیسے جائے. تو جب میٹنگ ہو رہی تھی نا تو ایک نے کیا کہا, رے چھوڑ دو شاعر ہے وہ, تو شاعر کون ہے. تو دوسرے نے کہا نا وہ تو کاہن ہے, کاہن یعنی نجومی ہے نجومی. تو تیسرے نے کیا کہا, رے وہ شاعر بھی نہیں ہے, کاہن بھی نہیں ہے, جادو کرے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کیا کہا. تو چوتھے نے کیا کہا, نا جادو ادھر بھی نہیں ہے, دماغ کام نہیں کرتا ہے, نعوذ باللہ. کیا کام نہیں کرتا, مجنون ہے مجنون. بولو کیا ہے, یہ قرآن میں لکھا, میں نہیں کہتا, قرآن کریم میں لکھا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. سوچو ہمارے نبی پر کیا گزرتی ہوگی جب یہ مشورہ ہوتا ہوگا. کوئی شاعر کہتا, کوئی کاہن کہتا, کوئی نجومی کہتا, کوئی مجنون کہتا, کوئی جادوگر کہتا. معلوم ہے ان میں سے ایک کیا کہتا ہے, ایک کام کرے, یہاں سے دور ایک قبیلہ ہے, بولو دور ایک قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو عامر, ساتھ میں بولو قبیلہ. وہاں ایک بہت بڑے بابا رہتے ہیں,
ये मक्का वाले कहते हैं बहुत बड़े लंबे चौड़े पहलवान रहते हैं और उनके हाथों में ऐसी ताकत है, किसी को नजर लगे तो भी उतार देते, जादू हो तो भी उतार देते, बंदिश हो तो भी उतार देते, किसी को दिमाग में थोड़ी परेशानी हो तो दवा भी दे देते हैं, तो उनको बुला ले। तो एक ने कहा उनको बुला ले, वो तो बहुत दूर कबीला बनो आमिर में रहते, लंबे चौड़े, और उनकी फीस बहुत है। अरे भाई उनकी फीस बहुत, हाँ फीस बहुत होती है कि भाई ये नजर है, जादू है, जिन्नात है, बंदिश है, दिमाग का प्रॉब्लम है। तो सब मक्का वालों ने कहा हम लोग मालदार है, बुलाओ उनको, जो भी फीस होगा हम दे देंगे, चलो अभी जा रहे बुलाने के लिए। ये सब के सब उठ के कबीला कहाँ गए, कबीला बनो आमिर, वहां जाके उनको मिले। उन्होंने कहा ठीक है आऊंगा, लेकिन मेरी फीस बहुत है, सबने हमको मालूम है आपकी फीस बहुत है। तो कहा कल सुबह में मैं आऊंगा। तो मक्का वालों ने क्या कहा, आप सुबह में आना, हम पहाड़ के पीछे छुपे होंगे, हम आपको पैसा दे देंगे, दिरहम भी देंगे, दीनार भी देंगे, जितना आपकी फीस है ना डबल करके देंगे, लेकिन हम मोहम्मद के पास नहीं आएंगे, सिर्फ आपको पता बता देंगे, आप जाके उनका इलाज कर लेना। कहा कोई बात नहीं, डॉक्टर को तो पेशेंट की जरूरत है, बाकी सबकी क्या जरूरत है। दूसरे दिन वो आए, बोलो कौन, कबीला बनो आमिर के पहलवान, और लंबे चौड़े हट्टे कट्टे और बड़ा इमामा पहने हुए अपने ऊंट पे बैठे हुए आए। जैसा आए मक्का के पहाड़ के पास उन लोगों को देखा, कहा लाओ मेरा फीस लाओ, मेरा पैसा लाओ। उन्होंने इतना बड़ा ठेला रखा था जिसके अंदर सोना और चांदी के दिरहम दिनार थे, वो लेकर इनको दिया। इन्होंने अपने ऊंट पे रखा, कहा आईना मोहम्मद, कहा है मोहम्मद, कहा है, कहा वो देखो 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 काबे के पास बैठे। कहा बस देख लिया, तुम लोग यही खड़े रहो, मैं अब उनको निमट लूंगा, पैसा भी ले आऊं और बहुत बड़ा आदमी हूं। गए अपने ऊंट को पार्किंग में लगा, फिर आए। हमारे नबी तो उस वक्त बैठे थे, ये पीछे से आके कंधे पे हाथ रखते हैं, कहते हैं कौन। हमारे नबी ने कहा मोहम्मद, मैं इलाज के लिए आया हूँ। तो हमारे नबी ने फरमाया इलाज के लिए, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है। कहा ये मक्का वाले कहते हैं ना आपको जादू है, कोई कहता है आप नजूमी है, कोई कहता है आपको दिमाग का प्रॉब्लम है, कोई कहता है कि आप जादूगर है, तो क्या है क्या प्रॉब्लम। हमारे नबी ने फरमाया नहीं सफी है शही, हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम मेरे को कुछ नहीं है, क्यों इलाज के लिए आए हो, कुछ भी नहीं है। तो ये सब मक्का वाले क्या बेकार बातें करते हैं, तुम हो कौन। हमारे नबी ने फरमाया सुभान अल्लाह, बोला मैं मोहम्मद हूँ, बोलो सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, बोलो सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, बोलो सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह का नबी हूँ, बोलो सुभान अल्लाह, आसमान से कुरान मुझ पर आता है, बोलो सुभान अल्लाह, अरे जिब्राइल मेरी मुलाकात को आते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। बस ये जोर से उछले। कहा अब समझ में आया दिमाग का प्रॉब्लम है कि अल्लाह को तुम ही मिले नबी बनाने, तुम ही मिले रसूल बनाने, तुम ही मिले कुरान पढ़ने के लिए, और जिब्राइल, ये सब दिमाग का प्रॉब्लम है। चलो अपना हाथ बताओ, अपना हाथ बताओ। वो मालूम है ना, ऐसा यूं हाथ देखते, यूं हाथ, हम हाथ बताओ, मैं देखो तुम्हारे दिमाग में क्या। हमारे नबी ने फरमाया मेरा हाथ रहने दे, तेरा हाथ मेरे पास ला, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी ने यूं हाथ पकड़ा और कहा उठो, वो उठ गए, चलो मेरे साथ। हमारे नबी लेकर चले, वो लोग भी देख रहे हैं, कहां लेकर, मोहम्मद लेके कहां जा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी खुले मैदान में ले गए, खुले मैदान में जाकर हमारे नबी ने क्या फरमाया, देखो वो दरख्त दिखता है, दिखता है। तो उन्होंने कहा हाँ नजर आता है, कब बुलाओ उसको। हमारे नबी ने कहा बुलाओ। कहा मैं जादू का इलाज करता हूँ, झाड़ को थोड़ी बुलाता हूँ। अब यहाँ पे ये देखो छोटा सा दर्द है, कोई बोले कारी अहमद अली बुला, कारी अहमद अली के नाम मर जावे मगर दर्द को नहीं बुला सकता। क्या उन्होंने कहा मैं नहीं बुला सकता। हमारे नबी ने कहा तू नहीं बुला सकता, मैं बुलाता हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। और क्या जुमला फरमाया, हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त की तरफ इशारा कर दिया, और हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह के हुक्म से अपनी जगह से उठ जा, अल्लाह के हुक्म से मेरे पास आ जा। और दरख्त अपनी जगह से उठा, साथ में बोला अपनी जगह से उठा, और ऐसा चलते हुए आया जैसा ऊंट चलकर आता है। और सब लोग सुभान अल्लाह बोलना, सिर्फ वो दरख्त आया नहीं, आके नबी को सजदा करने लगा, बोलो सुभान, झुक गया, नबी के सामने झुक गया, सजदे में झुक गया। फिर हमारे नबी ने फरमाया उठो, वो दरख्त सजदे से उठा। हमारे नबी ने फरमाया जाओ, वो दरख्त ऊंट की चाल चलने लगा। हमारे नबी ने फरमाया वापस अपनी जगह पर जाओ, बोलो वो दरख्त वापस अपनी जगह पर चला। अच्छा सुनना, दरख्त चला गया, इधर देखो, इधर देखो, दरख्त चला गया। हमारे नबी ने उनकी तरफ देखा, वो कबीला बनु आमिर के जो बड़े बाबा थे उनकी तरफ देखा, वो तो रो रहे। हमारे नबी ने पूछा क्या हुआ, कलमा पढ़ा दो मेरे को। हमारे नबी ने कहा कलमा, क्या का कलमा, तुम तो मेरा इलाज करने आए थे। तो यही तो गलती हुई, मैं समझा मैं डॉक्टर हूँ तुम पेशेंट हो, यहाँ के पता चला मैं पेशेंट हूँ तुम डॉक्टर हो, बोलो सुभान अल्लाह। तो अब सुनना पूरा बोर्ड सुभान अल्लाह कहना। हमारे नबी ने पूछा मगर ईमान क्यों लाए, कलमा पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, लगी ईमान क्यों ला रहे। कहा वो तुमने जो दरख्त को बुलाया ना, कोई कमाल नहीं था, वो तो हमने जादूगरों को करते हुए देखा है। दरख्त को बुलाते भी है और दरख्त को वापस बेचते भी है, कमाल नहीं था। लेकिन वो कबीला बनु आमिर वाले कहते हैं मैंने बड़ी बड़ी आसमानी किताबों को पढ़ा है, दरख्त को बुलाना और भेजना ये तो हो सकता है, लेकिन ये अल्लाह का दस्तूर है। दरख्त अगर सजदा करता है तो सिर्फ नबी को करता, नबी के सिवा किसी को नहीं करता है। दरख्त अगर सजदा करता है तो सिर्फ नबी को करता, नबी के सिवा। और ये दरख्त ने तुमको सजदा किया, मुझे यकीन हो गया कि आप अल्लाह के नबी है। मेरे प्यारो अब सुनना, अब हमारे नबी ने कलमा पढ़वाया, काबे के पास ले गए, कहा वजू कर ले, मैं भी 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह ने मेरे उम्मती को जहन्नम से बचा लिया, तू भी 2 रकात मेरे साथ में देख देख के पढ़ ले, अल्लाह ने तुझे भी जहन्नम से बचा लिया। और फिर उसके बाद में बहुत देर के बाद वो जाने लगे। अच्छा वो जाने लगे ना अपने ऊँट पर, तो वो पहाड़ के पीछे से वो आए, वो मक्का वाले आए, कहने लगे क्या हुआ। और क्या हुआ, आका बन के गया था, गुलाम बन के आया। आका बन के गया था, मोहम्मद का गुलाम बन के आया। तो उन्होंने कहा फिर हमारे पैसे का क्या, केली लिया का लो, इसके बदले में काबे के सामने मेरे नबी ने मेरे लिए जन्नत का फैसला कर दिया है। ऐसा प्यारा नबी हमको मिला है मेरे दोस्तों। अब मैं बात खत्म करने पर आ रहा हूँ, आप लोग झूठ तो नहीं बोलोगे ना, सच बोलोगे ना, क्योंकि मैं कब से शुरू से बोल रहा हूँ तकवा, क्या बोल रहा हूँ, तकवा, फिर बोलो क्या बोल रहा हूँ। आप लोग सोचते होंगे ये आएगा कैसे, भाई एक डॉक्टर बता रहे कि ये बीमारी है, तो दवा भी तो देंगे ना। अब मैं शुरू से कह रहा हूँ तकवा 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 तकवा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी तकवा, हमने हज किया तो तकवा, हमने रोजा रखा तो
तकवा, हजरत इब्राहिम बीवी को अलग छोड़ के गए तो तकवा, हजरत इब्राहिम बीवी को नहीं देखे तो तकवा, अपने बेटे के गले पे छुरी चलाए तो बोलो तकवा, और हमको भी अल्लाह ने कहा तकवा, कुरान करीम में 35 मरतबा तकवा। ये तकवा आएगा कैसे? झूठ नहीं करने वाले हो तो मैं बताऊं तकवा आएगा कैसे। खाली मेरे को 5 मिनट चाहिए। झूठ तो नहीं बोलेंगे, झूठ बोलने की बहुत आदत हो गई है। ये झूठ बोलते हैं हम लोग। सबसे बड़ा झूठ क्या बोलते हैं मालूम? हम लोग जिंदगी में सबसे बड़ा झूठ मौलाना अब्दुल्ला, मुस्तफा का दामन। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। जिसको देखो ऐलान करेगा मुस्तफा का दामन, बोलो गौस का दामन, और कम बखत पकड़ा ही नहीं है। कम बखत पकड़ा ही नहीं है, क्योंकि मुस्तफा का दामन और गौस पाक का दामन में सबसे बड़ी चीज है 5 वक्त की, कोई नहीं है हमारे पास। कैसा मुस्तफा का दामन है, कैसा गौस पाक का दामन है, कैसे खाजा का दामन है, कैसा जुनैद बगदादी का दामन है। हमारा हाल तो बिल्कुल कैसा हो गया मालूम? वो वोट लेने के लिए कैसा झूठ बोलते हैं। इसे बयान के आखिर में भी झूठ बोलेंगे सब लोग। यहाँ बोर्ड में तो नहीं बोलेंगे ना। वो एक नेताजी थे, नेताजी मौलवी फिरदौस इबादुल्लाह सुन्ना, एक नेताजी थे, उनको कोई गांव में वोट लेने का था। क्या करने का था? हाँ, वो नेताजी होते, आपके जैसे सदरी बदरी पहनते। हाँ? और नेताजी गए, गांव में गए, और गांव में जाके सबको, मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, बच्चियों को, सबको जमा किया और कहा देखो मैं नेता बनने वाला हूँ और चुनाव होने वाला है और मेरा ये निशान होगा और तुमको उसी निशान पर बटन दबाना है और तुम सबको मेरे को वोट देना है। तुम्हारी जो भी समस्या होगी, मैं भी अच्छा बोलता हूँ ना, चलूंगा ना नेता में, चलूंगा ना। वो नेता बोलते तुम्हारी जो भी समस्या होगी, चुनाव बाद में होगा, समस्या पहले दूर होगी, बताओ क्या समस्या है। एक बुढ़ा खड़ा हो गया, हमारे गांव में बस नहीं आती है। बुढ़ा खड़ा हो गया, हमारे गांव में बस नहीं आती। तो नेता होता है ना, बहुत जेब में से ये मोबाइल निकाला, बटन डाला, हेलो देखो का कौन है, कॉर्पोरेटर कौन है, बस देखो का ऑफिसर कौन है, हाँ मैं नेता बोल रहा हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये निशान है, कल से ये गांव में 4 मरतबा बस आएगी, किसी को तकलीफ नहीं, बस में खड़ा कोई नहीं रहेगा, सब सीट पर बैठेंगे, टिकट भी आधा लेने का, समझे? करके रखा फोन और कहा चलो बताओ अब कोई और समस्या हो तो बताओ। एक ने खड़े होकर कहा हमारे गांव में मोबाइल का टावर ही नहीं है। समझे आप लोग? नहीं समझ में आया? समझ में आया तो पहले किसके बाप को फोन किया था? टावर तो था ही नहीं। यहाँ भी ऐसा ये बगैर टावर के बोलना शुरू कर देते। अभी सबको बोलेंगे मुस्तफा का दामन, बोलो नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। और अभी वहां जाके गुटखा खाएगा। यहाँ बयान खत्म हुआ, वहां जाके गुटखा है, यूं निकलने हैं। और अगर ये मुंह छोटा है तो एक हाथ से दरवाजा खोलेगा, दूसरे हाथ से घुस जाएगा अंदर। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? थोड़ा आगे जाएगा तो उसकी माँ की, उसकी बहन की। तो ये मुस्तफा का दामन और गौस पाक का दामन कहाँ गया? इसे आज वो चुनाव की तरह झूठ नहीं बोलोगे। कौन कौन तैयार है? तकवा, हाथ ऊपर करके बोलो तकवा चाहिए तो हाथ ऊपर करो, बोलो हाथ ऊपर। हमारी माँ बहनें भी अपने दिल में सोचे तकवा। तकवा के लिए कुछ नहीं करना। तकवा का मतलब क्या है? अपने मन को, अपनी मर्जी को पटक दे, अल्लाह रसूल की मर्जी को। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमारे नबी ने काम बताया। क्योंकि आदमी सोचते कैसे करूंगा, क्योंकि बाल का मामला आवे तो अपनी मर्जी छोड़ दे, कपड़े का मामला आवे अपनी मर्जी छोड़ दे, चेहरे का मामला आवे अपनी मर्जी छोड़ दे, खाने का मामला आवे अपनी मर्जी, तो बहुत टेंशन लगता है। हमारे नबी ने फरमाया टेंशन नहीं लेने का। हमारे नबी ने फरमाया एक काम कर ले, तकवा आ जाएगा। और वो काम क्या है मालूम है? 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह ऑटोमेटिक तकवा अता कर देगा। मतलब बोरसर वाले कुछ नहीं करना है हमको। ये कल का जो दिन है ना, अरफे का दिन है, जैसा मैंने कहा कल का रोजे वाला दिन है, बहुत प्यारा दिन है। कल से तकबीर तशरीक का दिन है, बहुत प्यारा दिन है। बस कल से इरादा कर लो कि कल 9वीं ज़िलहिज्जा की फजर, बोलो 9वीं ज़िलहिज्जा की फजर से लेके मौत की शाम मेरी जिंदगी में नमाज कज़ा, आवाज से बोलो नमाज कज़ा। यहाँ नमाज आएगी वहां तकवा आएगा, तकवा आएगा मौत के वक्त कलमा आएगा, मौत के वक्त कलमा आएगा, बगैर हिसाब और किताब की जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो कौन कौन तैयार है नमाज पढ़ने के लिए? दोनों हाथ ऊपर करके बोले हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बच्चे बोले कि हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बल्कि आपको मैं मौलाना अब्दुल हक साहब को बता रहा हूँ कि इनको तो मालूम है, फतवा है अपना बच्चा 7 साल का हो जाए। कितने साल का? नमाज का हुक्म दो। हाँ बोलने का, बेटा नमाज पढ़े नहीं पढ़े कोई बात नहीं, हमारा काम है क्या करने का, बोलने का। कितने साल का बच्चा बच्ची हो जाए और 10 साल का हो तो थोड़ा हिम्मत पढ़ मारूंगा बेटा, मारूंगा, देखा कभी गुस्से हो जाऊंगा मैं तेरा अब्बू, मैं तेरी माँ हूँ, गुस्से हो जाऊंगी मैं। ताकि 7 साल से प्रैक्टिस शुरू करो, बालिग होने तक नमाजी बनेगा। आप ये कहोगे नमाजी नहीं बना, मुत्तकी वली बन गया। इसकी वजह से हमको कलमा नसीब हो जाएगा, बगैर हिसाब किताब जन्नत में चले जाएंगे। अभी से अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, बोलो सब करेंगे इंशाअल्लाह। बस अल्लाह ताला हम सबके बैठने सुनने को कबूल फरमाए। मैं आप तमाम का बहुत 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 शुक्र अदा करूंगा। अल्लाह आपके जान में, माल में, उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। घर में जिन्ना तो नहीं है आपके घर में? नहीं ना? कुछ लोगों को बड़ा डाउट होता है, बड़ा जिन्नात का इतना डाउट होता है। मौलाना शादाब साहब मेरे पास बहुत सूरत वाले आते हैं, कहते मौलाना एक बार तो मेरे घर में आओ, एक बार। मैंने कहा हुआ क्या इसको इतना कार्य अहमद अली याद आ रहा है, एक बार। कहा मौलाना जरा वो चेक करने का है। क्या होता? कहा रात को ठक 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 आवाज आती है आपको? आवाज आई। चलो आज लेकिन मैं जो जिन्नत का वाकया सुना रहा हूँ, सब कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। ये वलियों वाला महीना है, नबियों वाला महीना है। बहुत प्यारी बात सुनाने जाऊंगा, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, अगर आप किताब उठाओगे ना और उलमा को पूछोगे, ये ऐसे अल्लाह के वली है जिन पर बड़ी बड़ी किताबों में नाम आता है। आप लोग नाम याद रखें, हजरत सिर्री रहमतुल्लाह अलैह। साथ में बोलोगे तो अच्छा लगेगा। हजरत
सिर्री रहमतुल्लाह अलैह, ये वलियों में इनका नाम आता है। एक मरतबा ये हजरत सिर्री, अब सब लोग बराबर कान खोल कर सुनना और तवज्जो से सुनना। हजरत सिर्री रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा ऐसे ही शाम का वक्त था, रात के इशा के बाद का वक्त था, और वो जंगल में जा रहे थे और चूंकि अल्लाह के वली थे, अल्लाह के वली वही होते हैं, बस हजरत सिर्री रहमतुल्लाह अलैह जा रहे हैं और कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और चले जा रहे। अचानक हजरत सिर्री कह रहे कि चारों तरफ पहाड़ी इलाका है और मैं जंगल में अकेले जा रहा हूं। और एक बात याद रखना, जो अल्लाह वाला होता है वो किसी से डरता? मैंने बोलो अल्लाह वाला किसी से डरता? अल्लाह का वली वही होता है ना दुनिया में डरता है, और बोलो सुभान अल्लाह, आखिरत में कोई गम भी नहीं होता। बोलो दुनिया में डरता नहीं, आखिरत में कोई गम भी नहीं होता। ये कौन होता? अल्लाह का वली होता, जिसको अल्लाह ने फरमाया कला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा वली बंदा, मेरी वलिया बंदी वो है, दुनिया में किसी का डर नहीं होगा, आखिरत में कोई गम नहीं होगा, ईमान वाला होगा, गुनाहों से बचने वाला होगा। अल्लाह फरमाते लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह कहते मेरा वली बंदा होगा, दुनिया भी तेरे कदमों में, जन्नत भी तेरे कदमों में। बोलो सुभान अल्लाह। कौन से अल्लाह के वली का नाम मैंने लिया? जरा जल्दी बताओ। हजरत सिर्री। और आग के सन्नाटे में जा रहे, कुरान पाक की तिलावत कर रहे, अल्लाह अल्लाह जिक्र कर रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे। अचानक देखा कोई भी नहीं, ना दाएं ना बाएं ना आगे पीछे कोई नहीं। अचानक आवाज आई अस्सलामु अलैकुम। तो हजरत सिर्री वहां ठहर गए, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, तो कोई है तो नहीं। तो हजरत सिर्री डरे नहीं, हम होते तो मालूम नहीं क्या हालत होती। हजरत सिर्री रहमतुल्लाह अलैह ने खुलकर कहा भाई कौन है? अगर इंसान है तो सामने आ जा, जिन्नात है तो सामने आ जा, कोई फरिश्ता है तो सामने आ जा। बस इतना कहा कि एक जिन, बोलो सुभान अल्लाह, इतना इंसान की शक्ल में, खूबसूरत शक्ल में, खूबसूरत बालों वाले, खूबसूरत कपड़े वाले एक जिन्नात सामने आए और कहा मैं था जिसने तुमको सलाम किया। तो हजरत सिर्री ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम। बोलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हजरत सिर्री ने पूछा कि आप कौन है? कहा मैं जिन हूं। अब सुनना, हजरत सिर्री फरमाते मेरा नसीबा खुल गया। मैंने कहा कि आप यही रहते हो? कहा यही इसी जंगल में रहता हूँ। लेकिन वो जो जिन थे ना, आंखों में आंसू थे। फरमाया मैं उन जिन्नातों में से हूँ जिन जिन्नातों ने डायरेक्ट जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की है। बस इतना कहा कि मैं उन जिन्नातों में से हूँ जिन्होंने डायरेक्ट अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की है। और वो जिन्नात ने रोते रोते कहा कि कुरान करीम में जिन जिन्नातों का जिक्र आया है और जिन जिन्नातों की तारीफ आई है वहां मैं भी मौजूद था। बोलो सुभान अल्लाह। ओ हजरत सिर्री तो जैसे पूरा बदन पसीना पसीना वाला हो गया, इतना जल्दी आगे बढ़े और वो जिन्नात जैसे भी थे उनके हाथ पांव गए, जाकर उनके हाथ को थामा और चूम लिया। कहा इसलिए नहीं चूमता हूं कि तुम जिन्नात हो, इसलिए चूमता हूं कि तुम्हारा हाथ मेरे नबी के मुबारक हाथों से मिला है। बोलो सुभान अल्लाह। और हजरत सिर्री ऐसे बैठ गए, हालांकि वो जिन्नात सामने है, या ऐसे बैठ गए जैसा कोई तालिब इल्म बैठता है, जैसा कोई स्टूडेंट बैठता है, एकदम आजिजी के साथ, इनकिसारी के साथ बैठ गए कि तुम इतने बड़े हो कि तुम्हारा जिक्र कुरान में भी आया है। और कुरान में आया है जिन्नातों का जिक्र। बोलो आया है ना? आया, बाकायदा जिक्र आया है कि हमारे नबी ने कुरान पढ़ा और सारे जिन्नातों ने सुना। बोलो हमारे नबी ने पढ़ा और जिन्नातों ने सुना। अल्लाह ने फरमाया उलूहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न फक़ालू इन्ना समिअना कुरानन अजबा यहदी इला रुश्द फआमन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा व अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते इन जिन्नातों को देखो, बड़े गौर और फिक्र से ये कुरान सुन रहे हैं और मेरा मुस्तफा कुरान पढ़ रहे हैं। पढ़ने वाले मुस्तफा, सुनने वाले। खैर ये तो कुरान करीम में लिखा हुआ है। अब हजरत सिर्री, वो अल्लाह के वली का नाम याद रखना, एक स्टूडेंट की तरह सामने बैठ गए। कहा आप तो हमारे उस्ताद हो के उस्ताद हो, आपने डायरेक्ट हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा, आपके हाथ मुबारक नबी के मुबारक हाथों से मिले और आपका जिक्र कुरान में आया। तो अब हजरत सिर्री ने क्या कहा मालूम नहीं, आइंदा आपकी और मेरी मुलाकात कब होगी, लेकिन मुझे इतना बता दो कि आपने जब हमारे नबी से मुलाकात की तो मेरे नबी ने कौन सी ऐसी अच्छी बात कही जो आपने अपने कानों से सुनी, आज मुझे वो सुना दो, इंशाअल्लाह हम अमल करते रहेंगे। बोलो अमल करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अब बयान करने वाले कौन है? जिन्नात। लेकिन किससे बयान कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल पाक। क्या फरमाया मालूम है? वो जिन्नात कहते हैं मेरी आखिरी मुलाकात जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो जिन्नात कहते हैं मैंने खुद पूछा था कि अल्लाह के रसूल कुछ नसीहत कर दीजिए ना, मुझे क्या करना चाहिए जिंदगी में वो बता दीजिए ना। तो वो जिन्नात कहते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 नसीहतें की है। आज रात में चाहता हूँ वो 3 नसीहतें हम भी बोलो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी आवाज नहीं आ रही, बोलो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। हजरत सिर्री एक स्टूडेंट की तरह सामने बैठे थे। कहा आपका एहसान होगा वो 3 बातें मुझे भी बता दो, क्योंकि दरमियान में कोई वास्ता नहीं है, मैं सुन रहा हूं आपसे और आपने सुना है डायरेक्ट जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुनने के लिए दरमियान में बहुत वास्ते होते हैं। जैसे आपके सामने बुखारी शरीफ होगी, आपके सामने मुस्लिम आएगी, आपके सामने तिरमिज़ी शरीफ होगी, आपके सामने अबू दाऊद होगी, आपके सामने मुअत्ता मालिक होगी, आपके सामने मुअत्ता मोहम्मद होगी, आपके सामने मुस्नद अहमद होगी। बहुत सारी हदीसों की किताबों के नाम है, लेकिन आपने देखा होगा कि हमने इनसे सुना, इन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे
से सुना, कहाँ जाकर फिर नाम आएगा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हज़रत सिरी फरमाते हैं ये जंगल में मेरे से बड़ा, ये जमीन पर मेरे से बड़ा खुशनसीब कौन होगा कि मैं डायरेक्ट सुन रहा हूँ जिन्नात से, और वो जिन ने डायरेक्ट सुना है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो बहुत बड़ी बात होगी। आप बताओ ना, अब उन्होंने कितनी बातें बताई, कौन कौन अमल करेगा? अमल करने वाले तो मैं सब ये बातें शुरू करूँ, करेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कितनी बातें? सबसे पहली बात क्या कही मालूम है? वो जिन्नात ने कही कि मेरे नबी ने मुझे कहा कि एक जिंदगी में इरादा कर लो कि जहां तक हो सकेगा कलमे की मेहनत करता रहूंगा, दावत तबलीग, आना जाना, करीब दूर, दिन रात, एक ही काम, लोगों को भलाई का हुक्म देता रहूंगा, बुराइयों से रोकता रहूंगा। कौन कौन तैयार है उसके लिए? हाथ ऊपर करे। अपनी जिंदगी का मिशन बना लो कलमे की मेहनत। बोलो जिंदगी का मिशन, कलमे की मेहनत, दावत तबलीग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या आज मेरे दोस्तों, अभी जो बच्चे ने यहाँ पर आकर पढ़ा, सूरह मुज़्ज़मिल का रुकू पढ़ा, आप सोचो ये हमारे बच्चे कितने दारुल उलूम में पढ़ते हैं, कहाँ उनकी माँ उनके साथ होती है, उनके अब्बा उनके साथ होते हैं, उनको घर का खाना मिलता है, उनको घर का पानी मिलता है, उनको घर में उनको बुखार आता है तो क्या माँ उनके सर पे हाथ रखने वाली होती है? क्या अब्बा उनके सर पर हाथ रखने वाले होते हैं? नहीं, बेचारे 2-2 महीना 3-3 महीना मदरसे में पढ़ना, पढ़ाना, अल्लाह के रास्ते में जाना, अम्र बिल मारूफ, भलाइयों का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना। क्या कहा मालूम? वो जिन्ना की बात सुनना, कहा अल्लाह की कसम मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, पहली बात उन्होंने कही कि जितना हो सके कलमे की मेहनत करना, दावत करना, तबलीग करना, अम्र बिल मारूफ करना, नहीं अनिल मुनकर करना। वो जिन्ना कहते मेरे नबी ने ये कहा, ये करोगे अल्लाह चारों तरफ से तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा। हिफाजत मिलेगी मेहनत पर, दावत और तबलीग की मेहनत पर क्या मिलेगी? अच्छा, और यही बात कुरान में भी लिखी, लेकिन हमारी नजर कुरान पर होती नहीं। पारा नंबर 6, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर ये दावत का काम होगा, ये तबलीग का काम होगा। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह की मेहनतें होगी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की मेहनतें होगी, सीरत मुस्तफा पर मेहनतें होगी, भलाई का हुक्म देते जाओगे, बुराइयों से रोकते जाओगे। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, तुम ये काम करते जाओगे अल्लाह आसमानों से हिफाजत करता चला जाएगा। तो कौन कौन तैयार है पहले काम के? बल्कि ये जो रबीउल अव्वल में आप लोग जो मुन्ना भाई, अल्लाह आपको जज़ाई खैर दे, ये जवानों की टीम जो प्रोग्राम रखती है वो अलग बात है, कुछ हंसना हंसाना होता है, लेकिन वाकईतन मैं इनके लिए दुआ करता हूँ। ये भी दावत है, लो इसका नाम भी क्या है? एक वक्त में। बाकी सोचो ना कारी अहमद अली, अगर मैं मेरे घर में बैठ के ये बातें करूं, कौन सुनेगा? 2 सुनेंगे, 4 सुनेंगे, 5 सुनेंगे, इतना बड़ा मजमा सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो ये कमाल कारी अहमद अली का नहीं है, ये कमाल कारी अहमद अली का नहीं है, कमाल उन जवानों का है जिन्होंने ये मजमा तैयार किया, ये कुर्सियों का इंतजाम किया, ये माइक का इंतजाम किया, ये महल्ले वालों की कुर्बानी है, ये आप सब जमा हुए, ये मेरे लिए खुशनसीबी है। अल्लाह की कसम कभी कभी रात को रोना आता कि अकेला कारी अहमद अली को मालूम होता कि कुरान में ये आयत है, ये आयत है, ये आयत है, किसको सुनाता अगर मजमा सामने ना होता? अल्लाह इन जवानों को आज ये अजर अता फरमावे कि इन्होंने ये जो सीरतुन नबी के उन्वान से जो उलमा को जमा किया और दीन की बातें सुन रहे, इंशाअल्लाह इनकी बरकत से अल्लाह हमारे पूरे सूरत की हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पूरी दुनिया में हिफाजत का सामान पैदा करेगा इंशाअल्लाह। तो पहला काम कौन कौन तैयार है? मेहनत करेंगे। किस पर मेहनत करना? ला इलाहा। अपने बच्चों पर मेहनत करो, अपनी बीवी पर मेहनत करो, अपने घर में मेहनत करो, अपने अड़ोस पड़ोस में मेहनत करो, क्योंकि अल्लाह ने हमारी उम्मत को सबसे अच्छी उम्मत कहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भी उम्मत थी, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के पास भी उम्मत थी, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी उम्मत है, लेकिन अल्लाह ने कहा सारी उम्मतें पीछे होगी, मेरे मुस्तफा की उम्मत सबसे आगे होगी। इसीलिए एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहनुल अव्वलून व नहनुल आखिरून। हमारे नबी ने एक मर्तबा सहाबा को फरमाया हम पहले हैं, हम आखिर है, हम आगे भी है। और बोलो हम। तो सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो आगे होगा वो पीछे नहीं होगा, और जो पीछे होगा वो जो पहली सफ में बैठा है वो आखिरी में नहीं है, और जो आखिर में है वो पहली में। और हमारे नबी फरमाते नहनुल अव्वलून व नहनुल आखिरून, हम आगे भी है पीछे भी है। एक सहाबी खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल नहीं समझ में आता, अगर हम आगे हैं तो हम पीछे नहीं है, अगर हम पीछे हैं तो हम आगे नहीं है। हमारे नबी ने फरमाया दुनिया में आने में नहनुल आखिरून, हम आखिरी उम्मत है। बोले दुनिया में आने में नहनुल आखिरून, हम आखिरी उम्मत है। जन्नत में जाने में नहनुल अव्वलून, सबसे पहले कोई उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी जब तक मुस्तफा की उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएगी। और उसी को अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मेरे मुस्तफा आपकी उम्मत सबसे बेहतरीन उम्मत है, और काम ये ला इलाहा, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। बोलो सब करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे मैं आगे बढ़ूं, जल्दी आगे बढ़ूं, कितनी बातों पर हमको जाना है, फिर आखिर में एक मतलब सबको रिपीट कर लेंगे इंशाअल्लाह। तो ये काम हमको करना है, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। किसकी मेहनत करना? ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही है? ला इलाहा। अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो ला इलाहा। चलो, अबू जिन्नत ने हज़रत सिदरी को कहा, एक और बात भी मेरे नबी ने कही। क्या कहा? मेरे नबी ने कहा एक चीज करो, ये मेरे को मालूम नहीं आप लोग करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन हमारे नबी ने डायरेक्ट जिन्नात को कहा एक चीज करो,
कौन कहता है कि अल्लाह तुम्हारी नहीं सुनता? करके देखो, उसके दरबार में देर होगी मगर अंधेर कभी नहीं होगा। लेकिन वो चीज करो, मेहनत है, मुश्किल मुश्किल, लेकिन वो जिन्नत ने डायरेक्ट किनसे सुना? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट सुना। और हज़रत सिद्दीक़ को सुना कि एक काम करो, जो वो काम करो उसके बाद मांगो। वो जिन्नात ने कहा, मेरे नबी ने कसम खाकर कहा है कि ये काम करो फिर मांगो, अल्लाह की कसम, अल्लाह वो अता कर देंगे। तो हज़रत सिद्दीक़ बहुत करीब गए, कहा कि बताओ ना वो क्या काम बताया कि उसके बाद मांगो? तो कहा, रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ लिया करो। कौन कौन तैयार है मेरे प्यारों? रात को क्या करने का? क्या करने का? वापस बोलो। तो फिर रात को मोबाइल पर गेम कब खेलेंगे? मोबाइल पर स्नैपचैटिंग कब करेंगे? मोबाइल पर जीना कब करेंगे? मोबाइल पर रियाज का कारोबार कब करेंगे? रात को 2-2, 2:30, 3 बजे तक तो हमारा मोबाइल ऑन होता है। रात को जब बिल्कुल थकता है तब जाके मोबाइल को वो चार्जर में रखता है। और मेरे प्यारों में क्या मुन्ना भाई तहज्जुद की नमाज का कहूँ, अल्लाह की कसम यहाँ ऐसे नालायक बैठे जिन्होंने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, उनको मैं तहज्जुद की नमाज कहूँ। और ये बात मैं सही कह रहा हूँ, तहज्जुद की नमाज आसान है कि मुश्किल? मुश्किल। बोलो, कुरान ने कहा मुश्किल। कुरान ने कहा, अल्लाह ने फरमाया, इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु वक़अन व अक़वमु क़ीला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मुझे मालूम है रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ना, बोलो बहुत, लेकिन अल्लाह क्या फरमाते, एक बार आदत बना ले, फिर नहीं पढ़ेगा तो चैन नहीं आएगा। अरे बोलो चैन। और रात को तहज्जुद की नमाज जो पढ़ेगा, 2 रकात पढ़ा, फिर 2 रकात पढ़ा, फिर 2 रकात पढ़ा, फिर 2 रकात पढ़ा, 8 रकात पढ़ लिया। उसके बाद जो हाथ उठाता है, वो जो आंसू निकलते हैं ना, उस वक्त अल्लाह कहता, ए फरिश्तों, रात के सन्नाटे में मेरा बंदा मुझे नहीं भूला, अब मैं भी उसे नहीं भूलूंगा। ये मांगता जाएगा, मैं अता करता चला जाऊंगा। और जो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं ना, अल्लाह ने उनको कहा सबको जन्नत दूंगा। अरे बोलो, अल्लाह कहते सबको जन्नत, जैसा कि शुरू में कहा दरूद पढ़ने वाले को भी जन्नत मिलेगी, लेकिन अल्लाह कहते तहज्जुद पढ़ने वाला ने स्पेशल वक्त मुझे दिया है, जन्नत भी उसे स्पेशल अता करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मवाजिर यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून फला तअलमु नफ्स मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, ऐसी स्पेशल जन्नत अता करूंगा, तेरी आंखें ठंडी ठंडी हो जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। हम पर नमाजें कितनी पढ़ रहे? अरे अपना मुश्किल सवाल पूछो, कितनी नमाजें पढ़? हमारे नबी पर 6, हम पर, हमारे नबी पर बाज़ उलमा ने लिखा कितनी, कौन सी नमाज पढ़? तहज्जुद की नमाज। और अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरे मुस्तफा तहज्जुद पढ़ते रहना। क्या फरमाया? मेरे साथ में पढ़ो ना जल्दी, अभी वो बच्चा भी पढ़ कर गया, पढ़ो ना मेरे साथ में, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि। अल्लाह ने हमारे नबी से फरमाया, आपको तहज्जुद पढ़ना है, मेरे मुस्तफा तहज्जुद पढ़ना है। एक मरतबा हमारे नबी ने पूछा, अल्लाह मैं तहज्जुद पढ़ूंगा, क्योंकि अल्लाह ने फर्ज किया है और मुस्तफा पर फर्ज किया है। अल्लाह के हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह मैं तहज्जुद पढ़ूंगा, अल्लाह उसका इनाम क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुस्तफा तुम तहज्जुद पढ़ोगे, मैं तुम्हें मकाम महमूद अता करूंगा। हमारे नबी ने पूछा, अल्लाह वो मकाम महमूद क्या है? अल्लाह ने फरमाया, जहां मेरा अर्श है उसके सामने मकाम महमूद है। कयामत में तुम मुझे देखकर मुस्कुराओगे, मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, व मिनल लैली, पढ़ो जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ो ना, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अय्यबातक रब्बुक मकामन महमूदा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे मुस्तफा तहज्जुद पढ़ते जाओगे, सवाब अता करता जाऊंगा, मकाम महमूद अता करूंगा, मेरे अर्श के सामने महल अता करूंगा। तुम मुझे देखकर मुस्कुराओगे, मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराऊंगा। काम मुश्किल है, लेकिन सब काम अपने पूरे हो जाएंगे। कौन बोलता बीवी बात नहीं मानती, कौन कहता बच्चा बात नहीं मानता, कौन कहता समाज से परेशान, कौन कहता सोसाइटी से परेशान, कौन कहता कम्युनिटी से परेशान, कौन कहता लॉकडाउन के बाद मेरा धंधा नहीं चलता, कौन कहता कि मेरा कारोबार ठप पड़ गया। कसम परवरदिगार की, तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह सब काम आसान कर देगा। खैर मेरे दोस्तों, कितने इनामत मिल गए हमको अब तक, कितनी नसीहतें मिल गई? तीसरे के लिए आप सब लोग तैयार हो इंशाअल्लाह? सबसे पहला कलमे की मेहनत, बोलो ला इलाहा, आवाज से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। नंबर दो क्या बताया? नंबर 2 तहज्जुद की नमाज। कौन तैयार है? हाथ ऊपर करें, बोलो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे और पढ़ो, उसके बाद जो मांगोगे अल्लाह अता करेंगे इंशाल्लाह। तब एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अब तीसरी नसीहत के लिए कौन कौन तैयार है? बहुत आसान है, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। सुनते जाना। हजरत सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते, वो जिन्नत से मेरी मुलाकात हुई, जिनकी मुलाकात हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, और उस जिन ने बयान किया कि मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 काम करना होगा। सबसे पहला काम कलमे की मेहनत, बोलो ला इलाहा इल्ला, पूरा मजमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत करना होगा। नंबर 2
तहज्जुद की नमाज पढ़ना। और नंबर 3 क्या कहा मालूम है? वो जिन्ना की आंखों में आंसू है, कहा मेरे नबी ने मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे आखिरी नसीहत ये की थी कि जब तक तुम दुनिया में रहो, दिन होवे रात होवे, जब तुम्हें मौका मिले तुम्हारी जुबान पर अल्लाह होगा, अल्लाह होगा, अल्लाह होगा, अल्लाह का जिक्र करते जाओ, अल्लाह का जिक्र करते जाओ, अल्लाह का जिक्र करते जाओ। वो जिन कहते हैं, मैंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि आपने ये तीसरी बात कही ना कि जब मुझे मौका मिले मेरी जुबान पर अल्लाह, मेरी जुबान पर अल्लाह, मेरी जुबान पर अल्लाह, तो खाते वक्त क्या होगा? खाना खाते वक्त मैं कैसे अल्लाह अल्लाह करूंगा? अच्छा पीते वक्त मैं कैसे अल्लाह अल्लाह करूंगा? अच्छा मैं अपने घर में बीवी के साथ रहूंगा, कैसे अल्लाह अल्लाह करूंगा? इस्तिंजा करने जाऊंगा, कैसे अल्लाह अल्लाह करूंगा? और जिनने कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी भली बात कही कि तुझे जब मौका मिले अल्लाह करते रहना, जब तू बिजी हो जाएगा तू किसी भी काम में बिजी होगा, लेकिन फरिश्ते लिखते जाएंगे 24 घंटे ये अल्लाह ही अल्लाह का नाम लिया करता है। तो कौन कौन तैयार है इसके लिए? भाई अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे, बोलो करेंगे ना इंशाअल्लाह, नहीं बोलो ना करेंगे ना, जिक्र करेंगे ना इंशाअल्लाह। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, एक मर्तबा एक देहाती सहाबी, बोलो कौन? देहाती समझते हो ना? बद्दू बद्दू आराबी, गांव के रहने वाले विलेजर, एक सहाबी आए थे और एक सहाबी ने आकर क्या कहा था मालूम? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा काम बता दो ना, मुझे ऐसा कोई काम बता दो ना कि जन्नत का रास्ता मेरे लिए आसान हो जाए, जन्नत का रास्ता मेरे लिए आसान हो जाए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि देहाती है, बूढ़े हैं, गांव के रहने वाले हैं और उनके सर पर जो पगड़ी है, जो इमामा है, उनके जो कपड़े हैं, सबसे पता चलता है कि गांव वाले हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक काम करोगे तुम, एक काम करोगे, तुम्हारा जन्नत का रास्ता खुल जाएगा, तुम्हारा जन्नत का रास्ता खुल जाएगा। वो देहात के थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल आप कहिए ना, मैं वो काम करूंगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी तुम्हें मौका मिले तुम्हारी जुबान पर अल्लाह, बोलो ना तुम्हारी जुबान पर अल्लाह, तुम्हारी जुबान पर अल्लाह। सुबह हो तो बोलो अल्लाह, दोपहर हो तो अल्लाह, शाम हो तो अल्लाह, रात हो तो अल्लाह। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, फसुबहानल्लाह हीना तुमसून व हीना तुस्बिहून व लहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्द व अशिय्यन व हीना तुदहिरून। अल्लाह फरमाते हैं मेरा नाम लिया कर, पूरा मजमा बोलेगा, सुबह हो तो अल्लाह, दोपहर हो तो अल्लाह, बुलंद आवाज से शाम हो तो अल्लाह, रात हो तो अल्लाह। मालूम है वो सहाबी बूढ़े सहाबी थे, गांव के थे, और उन्होंने ऐसी लकड़ी उठाई और कहा अल्लाह के रसूल में जा रहा हूं, बस मैं अल्लाह का जिक्र करता रहूंगा। हमारे नबी ने फरमाया जाओ जन्नत में जाओगे। तो वहां हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे, खड़े हुए, अल्लाह के रसूल वो अल्लाह का जिक्र करेंगे और वो जन्नत में चले जाएंगे, उनके लिए स्पेशल है। हमारे नबी ने फरमाया वो नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा उम्मती जब मौका मिले उसकी जबान पर अल्लाह होगा, अल्लाह बगैर हिसाब और किताब के उसे जन्नत में पहुंचा देगा। तो मेरे प्यारों, ये 3 काम, ये हजरत सिद्दीक ने वो जिन्नात से मुलाकात की, जिस जिन ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। आज की रात में 3 काम का अगर इरादा करो, हमारे बहुत सारे काम पूरे हो जाएंगे। बोलो सब करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। कितनी नसीहतें आई? नंबर 1 कलमे की मेहनत, ला इलाहा। कौन कौन करने को तैयार है? हाथ ऊपर करें। ये जरूरी नहीं, लोग क्या समझते मालूम, जमात में जाऊंगा 3 दिन तो कलमे की मेहनत करूंगा। ये क्या है? कलमे की मेहनत। आप सुन रहे हैं, ये क्या है? कलमे की मेहनत। जमात में जा रहे, क्या है? कलमे की मेहनत। मदरसे में पढ़ा रहे, क्या है? कलमे की मेहनत। खानका में बैठे, क्या है? कलमे की मेहनत। अरे मेरे प्यारों, मैं आपको कह रहा हूँ, एक मरतबा बम्बई के होटल में मैं था, तो मैं जब वो लिफ्ट में चढ़ा, मैंने देखा एक गाड़ी वाले को, वो भी लिफ्ट में चढ़ा। वो जो लिफ्ट वाला आदमी था ना, उसको उन्होंने कहना शुरू किया, अरे बेटा तुम नमाज पढ़ लो ना, कितना अच्छा होगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ लो ना, तुम्हारा नाम मोहम्मद है, सुलेमान तुम्हारा नाम है। मैंने सोचा ये है, ये है, ये निकला हुआ अल्लाह के रास्ते में निकला, होटल में, होटल ओबेरॉय में, बड़ी होटल में, और मेहनत किसकी कर रहा है? कलमे की मेहनत। बोलो करोगे इंशाल्लाह, 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे, कलमे की मेहनत करेंगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, बोलो करेंगे इंशाल्लाह। और जब मौका मिलेगा हमारी जुबान पर अल्लाह अल्लाह